آج جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سن لو کہ میچ ذرا غور سے سنیں نوجوانوں، آپ یہ میری سی کرکٹ کی ذرا کرکٹ کا ایک سبق بھی سیکھ لیں اور مقابلے کا بھی ایک سبق سیکھ لیں، کیونکہ یہ باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو تو کسی کو یہ سارے ملٹری کی نرسری کے اندر پلے ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کا منسٹر 8 سال رہا اور نواز شریف جنرل جیلانی کے گھر پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بن گیا۔ لیکن میں نے 26 سال عوام کے اندر گھس کے سیاست کر کے اور ادھر پہنچا ہوں مقابلہ کر کے، تو مقابلے کا میری کھیلوں کی گراؤنڈوں کے مقابلے کا ایک تجربہ ہے۔ میچ ختم ہونے سے پہلے ہی کئی دفعہ کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اگلی ٹیم جیت نہیں سکتی، ابھی میچ جاری ہوتا ہے، لیکن کپتان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اب میچ جیت گیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہم پاکستان کا میچ اللہ کے فضل سے جیت چکے ہیں۔ اسلام آباد میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں۔ اس وقت یہ آپ کی جو تصویریں جا رہی ہیں اسلام آباد، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، پسینے آ رہے ہیں، اور میں آج اپنی قوم کے سامنے، میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔ قائد اعظم نے انگریز سے آزادی دلوائی، ہم نے انصاف سے، قانون کی بالادستی سے لوگوں کو ان کے حقائق دے کے، ہم نے رول آف لا، سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، ہم نے اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی آزادی دلوانی ہے۔ آج ہمارے پاکستانی جاتے ہیں باہر، اس سارے علاقے سے محنت کش جا کے وہاں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں یورپ میں۔ کیوں جاتے ہیں وہاں کوئی پیسے بانٹ رہا ہے؟ وہ اس لیے وہاں جاتے ہیں ان ملکوں میں، ادھر قانون کی بالادستی، انصاف ہے، اور جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہے، ہماری جنگ، یہ جو طاقتور ٹولہ ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے لیے ایک قانون، عوام کے لیے دوسرا قانون، اور یہ اربوں روپے کی چوری کر کے این آر او لے لیں، اور بیچارے عام لوگ وہ انصاف ڈھونڈتے پھریں، کچہریوں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں، زمین پہ قبضہ ہو جائے، قبضہ چھڑوا نہ سکے، کیونکہ طاقتور کے سامنے کمزور بے بس ہے۔ تو ہم جو چاہ رہے ہیں حقیقی آزادی، وہ تب آتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جا کے سب سے پہلی چیز انصاف قائم کیا۔ یاد رکھو، پہلے انصاف آیا پھر خوشحالی آئی۔ پہلے انصاف نے انسانوں کو آزاد کیا، اور پھر ان آزاد انسانوں نے دنیا کی امامت کی۔ غلام رہتے ہیں، غلام چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں، صرف ان آزاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ اقبال کا شاہین آزاد ہوتا ہے۔ غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے
हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो मैं आज इधर खड़ा होके 6 सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। सवाल पहला सवाल कि जब वो अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ, नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च जारी है और लाहौर से होता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जबकि आज लॉन्ग मार्च का 6ठा रोज है और आज के मरहले का आगाज हो चुका है। चेयरमैन इमरान खान पिंडी बाईपास गुजरांवाला से ये इन्होंने आगाज किया है और कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे पहली मर्तबा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। सारी दुनिया में खेला हूं, हर चीज समझी है। ये सारे सियासतदान चोर और लुटेरे हैं और हम पर चोरों और डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मैंने 26 साल अवाम में घुसकर सियासत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पता चला है कि ये मैच पाकिस्तान जीत चुका है। इस्लामाबाद वालों की काम पे टांग रही हैं। मुझे पहली मर्तबा पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नजर आ रही है। ये इक़्तिदार लेने के लिए जंग नहीं है, बल्कि ये हकीकी आज़ादी मार्च पाकिस्तानियों और यहाँ के लोगों की हकीकी आज़ादी के लिए है, जिसमें ये सब मेरा साथ देंगे। और कौम को चोरों लुटेरों ने मसलूम बनाया हुआ है। और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मार्च के इस्तकबाल के लिए जिन शुरका की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात किए, मैं उनका मशकूर हूँ, जबकि गुजरांवाला के शहरियों का भी और वहाँ के लोगों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि अब घक्कर मंडी में मौजूद हैं, कारकुनान से खिताब कर रहे थे और आपको बताएं कि उनकी जानिब से भी कहा गया है कि मुझे हकीकी आज़ादी नजर आ रही है और नजर आ रहा है कि ये मैच पाकिस्तान जीत चुका है। हम पाकिस्तान का मैच जीत चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद वालों की काम पे टांग रही हैं। ये सारे सियासतदान चोर और लुटेरे हैं और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इंसाफ होता है तभी खुशहाली आती है। यहाँ पर ताकतवर के लिए एक कानून है, जबकि कमजोर के लिए दूसरा कानून है। और उनकी जानिब से पीटीएम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। कानून की बालादस्ती की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानून की बालादस्ती बहुत अहम है और मुआशरे में अगर कानून ना हो तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। जहां इंसाफ ना हो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के बगैर हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। इंसाफ होता है तभी मुल्क में खुशहाली आती है। यहाँ पर ताकतवर के लिए एक कानून है, जबकि कमजोर के लिए दूसरा कानून है। इस हवाले से उनकी जानिब से भी कहा गया कि रियासत मदीना बनाऊंगा और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा रियासत मदीना बनाने की बात की, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंसाफ कायम किया गया, फिर वहां खुशहाली आई। लॉन्ग मार्च का हवाला आपको बता रहे हैं जो कि लाहौर से रवाना हुआ, अभी घक्कर मंडी में मौजूद है और कल गुजरांवाला में इस लॉन्ग मार्च ने कयाम किया था। कप्तान के काफिले में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त कंटेनर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूद हैं, उनके हमरा रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी भी मौजूद हैं और आपको बना से दिखा रही हैं। बड़ी तादाद में शुरका इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर रही हैं। और जबकि आपको बताते चलें कि काफिला कराची से भी अली जैदी की क़यादत में रवाना हुआ है और ये काफिला पिंडी में इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वक्फे से इस लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे हैं। कारकुनान की आमद पर उनकी जानिब से हाथ हिलाकर उनकी आमद का खैर मकदम भी किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि जिला इंतजामिया और
जिसने लॉन्ग मार्च के इंतजामात संभाले हैं और इतना शानदार इस्तकबाल किया है और लोग बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, उनका मैं मशकूर हूं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गखर मंडी में अभी खिताब कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च जारी है और इसके लिए जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। कि क्या ये इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी और इल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अजीम ख्वाब जिसका नाम पाकिस्तान था, क्या ये इसलिए बना था कि इसका इंटीरियर मिनिस्टर 18 कत्ल करने वाला कब्जा ग्रुप राना सनाउल्लाह हो? क्या इसलिए बना था कि भगोड़ा मफरूर मुजरिम लंदन में बैठ के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे हमारे ऊपर हमें ऑर्डर करे, इस मुल्क में फैसला करे कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? और क्या इसलिए ये मुल्क बना था कि उस बाप और उसके 2 बेटों को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए के FIA केस में, और उसको केसेस उसके खत्म करके उसको, एक मिनट चुप चुप, उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। इसलिए पाकिस्तान बना था। क्या इसलिए बना था कि आसिफ जरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेल में गुजारा है उसने, अभी फेक बैंक अकाउंट में अरबों रुपए की करप्शन के केस हैं उसके, और वो आके मुल्क में फैसले करे कि आर्मी चीफ कौन होगा, इलेक्शन कब होगी? क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। और क्या हमारी ये किस्मत है कि इसाक डार इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बने, जिसने मैजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही दी सन 2000 में कि मैं इसाक डार शरीफ खानदान के पैसे, चोरी के पैसे मनी लॉन्डर करके बरतानिया भेजता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। मुझे मेरी कौम एक बात बताओ, हम सबसे दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं, और उसने कुरान के अंदर हमें बताया कि अल्लाह का हुक्म है हमें अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, कि हमें हुक्म दिया कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो। ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और क्या इन चोरों को ऊपर बिठा के और हमें कहें कि हम इन चोरों की क़यादत मान लें? मैं इनसे पूछता हूं, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरी हैं, हम गाय भैंसे हैं, हम इंसान हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम अमर बिल मरूफ पर चलने वाले हैं। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बताओ पाकिस्तानियों, इन चोरों को तस्लीम करोगे? मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज नहीं, मैं हर बारी इस मार्च पे ऐलान करता रहा हूं कि अगर इन चोरों के नीचे हमने गुलामी करनी है, मेरे लिए मौत बेहतर है, इससे बेहतर है मर जाओ। क्योंकि इनकी गुलामी करने से ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? बेहतर इंसान मर जाए। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गखर मंडी में लॉन्ग मार्च से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी लॉन्ड्रिंग के गवाह एक एक करके मर गए। इन चोरों की हुकूमत को मैं नहीं मानता। बड़ा मुजरिम वजीर आजम बन गया है, इसको जेल में होना चाहिए था। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में ये भी कहा, राना सनाउल्लाह के केस में भी पता चला कि एक ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ इंसाफ नहीं है। इंसाफ की जद्दोजहद के लिए पूरी कौम मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचे और उनकी जानिब से कहा गया है कि लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में शुरका शरीक हो रहे हैं। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि उनकी जानिब से भी कहा गया कि शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुझे पता चल चुका है कि हम पाकिस्तान का मैच जीत चुके हैं। इस्लामाबाद वालों की काम पे टांग रही हैं। मुझे पहली मर्तबा पाकिस्तान में हकीकी आजादी नजर आ रही है। उनकी जानिब से कहा गया, सारी दुनिया में मैं खेला हूं, हर चीज समझी है। ये सारे सियासतदान चोर हैं। शेर को तो वो नवाज शरीफ ने बुरा नाम दे दिया, इसलिए मैं टाइगर कहता हूं अपने लोगों को। और गखर इधर के भी आप सबको मैं आपका शानदार इस्तेकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब एक बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह का आज आपने मुझे इस्तेकबाल दिया। मैंने आप सबसे एक हल्फ लेना, मेरे साथ आपने हाथ उठा के हल्फ लेना। अपने अपने मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन कर दे, पीछे तक सब हाथ ऊपर कर दे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से बाबा से बुलंद उसको रिपीट करना है। अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। अच्छा, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा यानी पिंडी पहुंचूंगा, मैं सबको कॉल करूंगा और आपने मोटर में, बस में, ट्रैक्टर पे, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे जो आपको मिले आपने इस्लामाबाद पहुंचना। और अगर कुछ ना मिले तो पैदल आ जाना, इंशाल्लाह आपका इस्तेकबाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम जा रहे हैं, खान साहब के साथ आप मूव